ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਚੰਦ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 20 30 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਚੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 20 30 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਐਡ ਛਪਦੀ ਸੀ ਕਿ 33% ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। 6 6.5 7 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਕੰਸੋਲੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ, ਕਾਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਪਏ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਂਕਰਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨੇ % ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੁਛ ਅਗਲੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਣ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ, मैं पहले ही शब्द यूज़ कर चुके हैं, साड़ियाँ धीआं भैनों के ऊपर बहुत कीचड़ उछल रहा है। देखो, जो ये चीज़ बोल रहा है, जैसे देह व्यापार वाली बात आई है, पर्टिकुलर पर्सन जो भी है उसको ये वर्ड बोलने से पहले ये देखना चाहिए कि उसकी माँ बहन भी है। ठीक है, दूसरों के बच्चों के बारे में बोलने उतना ही बोलो जितना अपने बच्चों के बारे में सुन सको। ये बहुत बड़ी बात बोल दी कि भी आज की डेट में गर्ल्स जो इंडिया से जा रही हैं तो वो देह व्यापार कर रही है। मुझे एक तरह से होनेस्टली ये तो मन करता है बस रो ले, कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब रियली ठीक है, हम फ्रीडम में रह रहे हैं, बट इट डज नॉट मीन कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट्स दो। आज की डेट में जो बच्चा बाहर जा रहा है वो बहुत ग्रो कर रहा है। इवन कि जो गर्ल्स गई हुई है, जितनी हमारी बेटियां बहनें गई हुई हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रही है, बहुत अच्छी परिवार ले गया जी, डेफिनेटली। मतलब अरे यार, कल्पना चावला इंडिया से गई थी, पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया है। ठीक है, ऐसी पता नहीं हजारों लाखों लड़कियां हैं जो इंडिया से बाहर पढ़ने गई हुई हैं, जिन्होंने इतना अच्छा किया है। मतलब कल्पना चावला, मैं नहीं कहता कि बाहर पढ़ के आई होगी, बट उसने पूरे देश का नाम रोशन किया। अरे यार, लानत है अगर तू मतलब कोई भी ऐसी चीजें बोल रहा है पर्टिकुलर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मतलब एक तरह से ये चीज तो बहुत गलत है। प्लीज ये स्टेटमेंट जो किसने बोली है वो उसको वापस लेनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨੀਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। है अपने कारोबार, ये बिजनेस स्ट्रेटजी है। और ये जो हमारे अपने जो पर्सन है, मतलब जो अपने इंडियंस हैं, जो खासकर नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, उनको गुमराह करने वाले, इमोशनल टच लेके गुमराह करने वाली बात आती है। कनाडा आज चल रहा है, आज जिसका कनाडा नहीं चल रहा है वो कनाडा के बारे में गलत बोलेगा, जिसका कल न्यूजीलैंड नहीं चल रहा था न्यूजीलैंड के बारे में गलत बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के बारे में। एक तरह से सोशल मीडिया पे
अपने आप को बेस्ट बता के दूसरों को गलत बताना, दूसरी कंट्री को गलत बताना, इट इज़ टोटली रॉन्ग। और ऐसा नहीं है दोस्तों, न्यूजीलैंड भी बेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया भी बेस्ट है, कनाडा भी बेस्ट है, इवन के यूरोपियन कंट्रीज जितने भी अच्छे कंट्रीज हैं सारे बेस्ट हैं आज की डेट में। कुछ लोग जो आज की डेट में मतलब इस सर अफगानिस्तान भी लोग रह रहे ने, जी जी जी, जम्मू कश्मीर ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵਾਂ ਸਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ भी ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ लाज वास्ते कुछ शब्द ने ਜਿਹੜੇ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिसने ये चीज बोली है, अगर उसकी कुड़ी के बारे में ये बात बोली जाए कि वो दो दे व्यापार, उसको कितना अच्छा लगेगा यार। आज की डेट में जितने भी मतलब एक कुड़ियां हैं, हमारी माँ बहन है, बेटियां हैं, हम यहीं से मतलब पूरी सृष्टि इसी से चलती है। और ऐसी स्टेटमेंट मतलब मैं तो इसको डेफिनेटली ऐसी मतलब मैं तो इसके लिए मतलब यू कैन से मेरे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट जितना बोला गया है वो टोटली रॉन्ग है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੈਨੇਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਗਲੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਡੀਐਸ ਆ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ है। देखो मैं अपने हर एक जितने भी मेरे शो किए हैं या जो भी मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ स्टूडेंट के पेरेंट्स से कि आप 1 साल की फीस भर के जाओ, जीआईसी लेके जाओ, इसके बाद आपको घर से पैसा नहीं मंगाना। और ये सच्चाई है, ठीक है। लेकिन जिन बंदों को, जिन स्टूडेंट्स को 20-20, 25-25 लाख के पैकेज में, और जीआईसी भी स्टूडेंट का अपना हो, जीआईसी भी स्टूडेंट ने भरा हो और 20 लाख 25 लाख रुपए दिए हो सिर्फ वीएसएल के इंग्लिश कोर्स के या एक सेमेस्टर की फीस के, वो बच्चे परेशान हो रहे हैं। उन बच्चों को हो सकता है परेशानी आ रही होगी पैसा कमाने में, लेकिन जो बच्चा 6 मंथ की, साल की फीस प्लस जीआईसी लेके गया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 20 लाख तो अगले कंसल्टेंट को दे दिए, खुद 3 लाख 4 लाख रुपए फीस भरी है, तो भैया परेशानी आने वाली है। जो बच्चा साल की फीस भर के गया, 6 महीने की प्लस जीआईसी ले गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद कनाडा कई बार विजिट किया, स्टूडेंट से मिला हूँ। 20 घंटे बच्चा काम कर लेता है और इजिली वर्क मिल जाता है, उसमें वो खाना पीना रहने के खर्चे मीट कर लेते हैं। और अब तो जैसे अब मई जो आया है, मई में छुट्टियां 4 महीने की आ रही हैं, तो इसमें बच्चा तकरीबन अगले सेमेस्टर की फीस आराम से निकाल लेता है। तो इतनी वर्स्ट कंडीशंस नहीं है। वर्स्ट कंडीशन अगेन जैसे सर ने बोला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 20 से 25 लाख रुपए ठगी होके गए हैं। हाँ, पहले ही अपना सारा पैसा कंसल्टेंट ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂਗਾ? ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਚੁਣਿਆ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਧੀਆ ਚੁਣਿਆ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੀਆਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸਸ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੈ, 1-2 ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਪੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪਲੀਜ਼, ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ गलत होनी। एक और सुनने को आई थी बात कि भाई आज की डेट में जो बच्चे जो गांव में रहने हैं, हरियाणा या पंजाब में, उनके पास कहाँ से फीस है 9 से 10 लाख रुपए भरने की? वो अगले 50,000 लाख रुपया कहाँ आगे भेजेंगे? अरे भैया, जिस बच्चे ने 6 महीने की फीस दे दी प्लस जीआईसी दे दिया, ठीक है, 1 सेमेस्टर की फीस और पे कर दी, वो इजीली बच्चा सरवाइव कर सकता है। और आज की डेट में जितने अपने नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया इज़ द ओनली वन जो फाइनेंशियल साउंड है। अर्निंग हर के रिसोर्सेज काफ़ी हैं, वो एग्रीकल्चर से भी होते हैं, वो जॉब से भी हो सकते हैं, वो बिजनेस से भी हो सकते हैं। और जो बच्चा जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो सोच समझ के भेज रहे हैं कि भाई हाँ कि 9 से 10 लाख रुपए साल की फीस है प्लस जीआईसी है, ये जिसने पे कर दिया। इवन के जो पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हाँ मैंने अपने बच्चे को बाहर भेजना है, इतना हर किसी
इसी का जुगाड़ है। ये चीज़ें गुमराह करने वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। साथ साथ में स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मैं जरूर चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसी स्टेटमेंट से कभी मत आइए, स्टेटमेंट के बहकावे में कभी मत आइए कि लड़कियां वहां जाके देह व्यापार कर रही हैं। ये टोटली रॉन्ग है। अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए किया जा रहा है और अपने आप को फोकस करने के लिए हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे नॉन पता नहीं कितनी लड़कियां बैठी हैं, मैं खुद अपनी बेटी भेज रहा हूँ। मैं एक बेटी अभी मेरे भाई की लड़की है, मैं उसको अगले साल भेज रहा हूँ। मेरी बेटी मैं उसको स्कूलिंग के लिए भेजूंगा। मेरी इधर से रिश्तेदारी में बैठे हैं, मैंने हजारों लड़कियां बाहर भेजी हैं पढ़ने के लिए। मेरे को तो आज तक कोई मिला नहीं जिसने देह पार किया हो। ये स्टेटमेंट बहुत गलत है, डेफिनेटली गलत है। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਦੇ ਮਿਚਦੇ ਹੋ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 35 ਲੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ USA ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ सेकंड एक आयल सेंटर आस्की का अड्डा, मतलब आई एम शॉक्ड। आयल सेंटर आस्की का अड्डा, अरे भाई आयल्स आप करा रहे हो, दुनिया भर के कंसल्टेंट्स हैं जो आज की डेट में अच्छे कंसल्टेंट्स करा रहे हैं, उनके जो छोटे भी करा रहे हैं। इससे छोटी बात नहीं हो सकती आयल सेंटर आस्की का अड्डा। आयल सेंटर्स में सिर्फ बच्चा बाहर पढ़ने के लिए आयल्स नहीं कर रहा। सबको पता है वी आर लिविंग इन नॉन इंग्लिश। सर 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ मूव ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। 1.5 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਆयल सेंटर करके ही जी हो जी, रहा है। वी आर लिविंग इन नॉन इंग्लिश कंट्री। इंग्लिश कंट्री में जाना है तो अगेन आपको आयल्स पीटी या टफल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर इंडिया में भी आपको अच्छे लेवल पे MNCs कंपनी में जॉब करनी है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। तो पेरेंट्स को बच्चे तो भेजने पड़ेंगे। तो आस्की का अड्डा मैं नहीं समझ पा रहा, मतलब बिजनेस सर ये दसण ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈ ਕਿ ਆयल सेंटर 'ਚ जाके पढ़ो ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ कामयाब होगा। आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। इंग्लिश से अब्रॉड जाना तब जरूरी है। इंडिया में रहना, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, जहां यूपी में जहां भी रहना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और आयल सेंटर है जहां पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। 4 मॉड्यूल है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो चारों मॉड्यूल्स का नॉलेज होगा तभी बच्चा आगे ग्रो कर पाएगा। तो ये छोटी जो ऐसी स्टेटमेंट देके मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट्स अपने बच्चों को आयल्स करना छोड़ देंगे या स्पोकन इंग्लिश में भेजना छोड़ देंगे। दैट इज अगेन रॉन्ग ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ SDS ਰੈਗੂਲਰ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ 6 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ SDS ਲਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂ ਬੈਂਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए अगर SDS आया है तो SDS में आपको साल की फीस पे करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं बेस्ट हुआ है, इंप्रूवमेंट हो रही है, अच्छी बात है। उनको दे नीड द मोर स्किल्ड स्टूडेंट्स। तो और वो भी आयल्स सेंटर से ही निकलेंगे स्किल्ड स्टूडेंट जिनके 6 ईच आएंगे। आयल्स का आस्की का अड्डा नहीं है, 6 बैंड वहीं से बच्चे को मिलना है। तो SDS में 6 ईच होने चाहिए। 6 ईच के साथ बच्चा जाएगा तो SDS में फॉल होगा, क्योंकि जितने भी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट हैं, DLI कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें बच्चे को अगर जाना है SDS के अंदर फॉल होना है तो 6 ईच लेना होगा, प्लस में साल की फीस आपको देनी पड़ेगी, प्लस GIC देना पड़ेगा। इसके अलावा जेनरिक है, जेनरिक में आप 6 मंथ की भी दे सकते हो, साल की भी दे सकते हो, GIC भी दे सकते हो। अगर GIC आप नहीं करते तो प्रेफर्ड ऑप्शन GIC है, GIC नहीं है तो $10,000 का एजुकेशन लोन। आपको फंड दिखाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में लगते हैं वो दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में भी यही है कि साल की या 6 महीने की फीस दे दो, प्लस में GIC प्रेफर्ड ऑप्शन है। GIC नहीं देते तो आप $10,000 का एजुकेशन लोन दे सकते हो। चीज है ना, वो एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि सक्सेस रेट ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਜੇ SDS 'ਚ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਊਗਾ? देखिए सर, SDS में बच्चा जाएगा तो डेफिनेटली उसको प्रेफर्ड ऑप्शंस दिया गया, लाइक जैसे स्ट्रीमलाइन किया गया है कि मींस लाइक अगर आप 6 बैंड ईच के साथ आते हैं तो डेफिनेटली SDS में प्रायोरिटीज मिलेगी। उसमें आपको कुछ नहीं करना, 1 साल की फीस देनी है, GIC देना है और आपके फाइल लगेगी, वीजा निकलेगा जैसे SPP में होता था। और आपकी जेनरिक में जाएगी तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं। डेफिनेटली प्रेफर्ड जिसको दिया जा रहा है, स्ट्रीमलाइन जिसको किया, उसके अलावा अगर आप किसी और में जाते हो, मैं ये नहीं कहता कि वीजा नहीं आएगा। अगर प्रोफाइल अच्छी है, परसेंटेज अच्छी है, स्कोर अच्छा है, 6 नो लेस देन 5.5 भी है और 6.5 नो लेस देन 5 भी है,
तो भी अगर आप जनरल कैटेगरी में जाते हैं, आपने राइट कंसल्टेंट चूज किया है, राइट कोर्स लिया है, फीस साल की दोगे तो इट विल बी मोर बेटर, प्लस में एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लिखनी पड़ेगी। अगर ये सारी चीजें करते हो तो डेफिनेटली वहां भी वीजा चांसेस हाई हैं। सर एक चीज़ ਦੱਸੋ, एसडीएस आ ਗਿਆ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਾ 6 ਬੈਂਡ 1 ਚ 5.5 ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 5.5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਜਾਂ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ एसडीएस 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੈ, ਫਿਰ 6 ਚੋਂ 5.5 ਵਾਲਾ ਕਿ 5.5 ਨੂੰ ਵੀ एंटरटेन ਕੀਤਾ जाऊगा? देखो, जो बिजनेस चला रहे हैं, जो इस तरह की बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, मैंने कभी भी प्रमोट नहीं किया। मैंने हमेशा बोला है कि अगर 5.5 बैंड ले सकते हो तो आप 6 भी ले सकते हो, 6.5 बैंड भी ले सकते हो। अगेन आपको एक आयल सेंटर, चंगा आयल सेंटर आपको चूज करना पड़ेगा, अच्छा टीचर होना चाहिए, आपका स्कोर आएगा। हाँ, 5.5 बैंड पे जो फाइल लगा रहे हैं बहुत अच्छी परसेंटेज है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन चांसेस विल बी लेस। अगेन मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि आज की डेट में सेग्रीगेट हो चुका है, हाई कमीशन ने एक तरह से 6 ईच कर दिए, तो कुछ ना कुछ सोच के किया होगा। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसमें मतलब कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपके कितने बैंड होने चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है तो, और वो भी आपकी परसेंटेज अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगेन दिन लग चुके हैं ऐसे लोगों के जो 5.5 बैंड पे और विदाउट आइल्स 33% पे बोल रहे थे। पहले ऐसे लोगों को न्यूजीलैंड ने चित्र मारे हैं, आज की डेट में ऐसे लोग अपना ऑस्ट्रेलिया, अपना कनाडा से भी चित्र खाने वाले हैं। अच्छा बात है जी, बिल्कुल ठीक है गल ਤੁਹਾਡੀ। प्रदीप जी, इस वक्त ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ एसडीएस ਦੇ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, Facebook ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ एसडीएस ਦਾ? एसडीएस, हाँ, इंपैक्ट की पे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ समझ की नहीं आ रहा। कोई नई चीज आती है तो एकदम बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, नहीं समझ पाते। अगर वो बच्चे एक स्टेप में ही समझ जाए तो वो खुद कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, वो अपनी फाइल खुद भी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टूडेंट की तरह से उसको लेके चलेंगे, बट उसको मिसगाइड ना किया जाए। आज की डेट में बच्चों में है प्रॉब्लम कि वो सोचते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट तो 6 नो लेस देन 5.5 वाली है, 6 ईच वाले तो 30% एक तरह से मार्केट में निकल के आते हैं। अब बच्चों को हार्डवर्क करना पड़ेगा, अगेन अच्छे आयल सेंटर्स को चूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन से ही आते हैं, सर अब मेरा क्या होगा, मेरे तो 6 ईच है बट मैंने 6 महीने की फीस दी है। उसको यही कह रहे हैं भाई तो आप अपनी साल की फीस दे दो। जो बच्चे 6 नो लेस देन 5.5 है उनको जनरल कैटेगरी में लगाना पड़ेगा, चाहे तो वो जनरल, मान लो अगर वो जैन में जा रहे हैं तो दे कैन टेक द रिस्क, अगेन एक बार अपना दोबारा 6 ईच की तैयारी करके भी आप फाइल लगा सकते हैं, एसडीएस में जा सकते हैं। अदरवाइज आप 6 नो लेस देन 5.5 पे जा रहे हैं, ऐसे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि 6 ईच की कोचिंग ले सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप अपना जनरल में फाइल लगेगी, 6 महीने की फीस दी है, साल की फीस पे कर दो, प्लस जीआईसी ले लो, 4-5 लाख के फंड दिखा दो, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और पेरेंट्स की एनुअल इनकम के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वीजा निकलने के चांसेस बहुत हाई हैं यहाँ पे। और इवन के जिनकी फाइलें पहले लगी हुई हैं, जो एसडीएस आने के बाद, उससे पहले जो लगी हुई हैं, रोज के 7-8 वीजा डेली निकल रहे हैं। अच्छा प्रदीप जी, एक चीज दसो, बड़ा टैक्नीकल जा इशू है ये, बच्चों का भी है, बेचारियों का, मेरा भी क्वेश्चन है। 9 जून तो पहला सारा कुछ हो गया, फाइल नहीं लगी, फीस भरी गई, रसीदा आ गई, सब कुछ हो गया। उस तो बाद जो हुण लाऊगा, जीआईसी एक्सेप्ट हो जानी है या फंड शो करने पड़ेंगे? देखिए, एसडीएस जब से चला है तो एसपीपी खत्म है, तो उसकी चाहे तो एसडीएस में 6 सीट्स हैं तो एसडीएस में आएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा साल की फीस नहीं, मैं जीआईसी की गल कर, जीआईसी चलेगा सर। जैंडिक की अगर आप चेकलिस्ट उठाओगे, जैंडिक की चेकलिस्ट में लिखा है कि भाई फ्री शिफ्ट के साथ प्रेफर्ड ऑप्शन है कि भाई आप $10,000 का एजुकेशन, सॉरी $10,000 का जीआईसी लो। अगर आप जीआईसी नहीं लेते तो $10,000 का एजुकेशन लोन लेटर लगाओ, लेकिन एजुकेशन लोन लेटर पे चांसेस विल बी लेस अगर आप साल की फीस पे करो, प्लस में जीआईसी लेते हो, 4-5 लाख के फंड दिखाते हो, हाई वीजा सक्सेस रेट। मतलब जीआईसी तोड़वाने की लोड़ नहीं है, जेडे बच्चों का ऑलरेडी जीआईसी होया, जिसने जीआईसी ले रखी तो प्रेफर्ड ऑप्शन है सर। वो तो खुद बोलती है कि जिसने जीआईसी ले रखी दैट इज प्रेफर्ड ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है गल ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चों का ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਲੱਗਣੀ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜੇ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ 'ਚ 5.5 ਨੇ, 7 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਔਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਟਸ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
पहले क्या था, एसपीपी के अंदर एजुकेशन प्रोवाइडर्स जो थे वो सिलेक्टेड थे। 47 एजुकेशन प्रोवाइडर्स थे, जिसमें 3 यूनिवर्सिटी आती थी, रेस्ट कॉलेज थे। तो हर एक एसपीपी में जाना चाहता था। आज की डेट में जब एसपीपी खत्म हुआ है, एसडीएस आया है, तो एसडीएस के अंदर अंडर वन रूफ सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज आ गए जिसके पास डीएलआई नंबर है। जिस कॉलेज के पास पहले 47 थे सर, 47 में बच्चा जा सकता था। आज की डेट में जिस कॉलेज के पास या एजुकेशन प्रोवाइडर्स के पास डीएलआई नंबर है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आता है, वो एसडीएस के लिए बच्चा ले सकता है। तो अब क्यूबिक में भी बच्चा जा सकता है, ओंटारियो में भी है, ब्रिटिश कोलंबिया में भी है, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में भी है, नोवा स्कोशिया में भी है। तो मतलब आपको जितने भी 10 प्रोविंस और 3 टेरिटरी हैं, उनमें किसी में भी आप जा सकते हो, बशर्ते कि डीएलआई होना चाहिए। 6 ईच अगर आपके हैं तो आपकी एसडीएस के अंदर फाइल लगेगी। अगर 6 बैंड ईच नहीं है तो जनरल में फाइल लगेगी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਡੀਐਲਏ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, पोस्ट कर सकते हो। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है। इमिग्रेशन के साइट्स पे जाके आपने देखना है, सब जितने भी डीएलआई कॉलेज हैं उन सब के पास वर्क परमिट नहीं है। मतलब ऐसा, मतलब आपने कोई एक कॉलेज से पढ़ाई करी, मे भी उसके पास स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं, मे भी ना हो। तो ये आपने क्या करना है, एम्बेसी की साइट्स पे जाके वहां डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट निकालनी है। उसमें क्या है कि इधर कॉलेज का नाम है, फिर डीएलआई नंबर है, उसका कैंपस है, और लास्ट में लिखा हुआ है कि पीजी मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डीएलआई के अंदर जितने भी कॉलेज हैं एसडीएस में भी फॉल होते हैं, जनरल में भी फॉल होते हैं। लेकिन एसडीएस के अंदर भी जाना इट डज नॉट मीन कि आपको वर्क परमिट मिलेगा। वहां आपने ये चीज जरूर देखनी है कि वो कौन सा कॉलेज है जिसमें स्टडी कंप्लीट करने के बाद मुझे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣ? ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ। देखिए जी, पहली बात तो मैं उसी दिन फेसबुक पे लाइव आ गया था, सैटरडे के दिन ही। सेकेंडली मैंने अपनी पूरी टीम को बुला के स्काइप सेशन भी कर दिए हैं, मैं खुद भी विजिट कर रहा हूँ। और इवन कि अब मेरी क्या नाम है, कमिंग सैटरडे को मैंने फिर पूरी टीम जितनी भी ब्रांचेज है सबको बुला के इन चीज़ों के लिए ट्रेन करना है। और सेकेंडली हर एक स्टाफ को टास्क दिया गया है कि इमिग्रेशन की साइट्स पे जाओ, एसडीएस पढ़ो, जनरल पढ़ो, यूनिवर्सिटी पढ़ो। तो आज की डेट में वेस्टर्न ओवरसीज में आप आओगे तो आपको परफेक्ट नॉलेज मिलेगा। चाहे कोई भी काउंसलर है मेरी, वो आपको परफेक्ट बताएगी। इवन कि मैंने तो अपनी टेली काउंसलर है, और इवन के जो दूसरे डिपार्टमेंट भी हैं, क्योंकि कनाडा की कॉलेज ज़्यादा आती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो न्यूजीलैंड है, चाहे वो यूरोप है, उनको भी ये पता होगा एसडीएस क्या है। ਜੀ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ माध्यम राही जनवरी और मई इनटेक जाने वाले बच्चों की मैसेज? दोस्तों, एक ही चीज़ बोलूँगा, कोई भी सेंटर आस्की का अड्डा नहीं है। आप प्लीज़ अपना हार्डवर्क करिए, सिंसियर रहिए। आयल सेंटर चूज करना थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर होना पड़ेगा कि टीचर कौन सा अच्छा है, डिलीवरिंग मेथड उसका अच्छा होना चाहिए। अगर डिलीवरिंग मेथड अच्छा है तो आप अच्छा स्कोर ले पाओगे। 6 ईच की टारगेट रखिए, 7 बैंड की टारगेट रखोगे जब 6 ईच आएंगे। जितने भी पेरेंट्स इस शो को देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक किसी ने ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट डाल दी है कि मतलब आस्की का अड्डा है या बाहर हमारी जो बेटियां जाती हैं वो देह व्यापार करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने बिगड़ना होगा वो इंडिया में भी बिगड़ सकता है, सीधी सी बात है। और आप लोग कैपेबल हैं, आप स्मार्ट हैं, ऐसे बंदों को जड़ से उखाड़ फेंकिए जो इस तरह की मतलब आपको मतलब एक तरह से इज्जत दाव पे लगा रहे हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो डेफिनेटली प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बातों में मत आइए। सेकेंडली, आप अपने बच्चों को थोड़ा सा एजुकेटेड करिए कि ऐसे फ्रॉड एजेंटों से बच्चे हैं जो 20-20 लाख के 25-25 लाख के अपना पैकेज कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना कि स्वर्ग कहाँ है भैया, स्वर्ग आपको मरने के बाद ही पता लगा कि स्वर्ग नरक क्या होता है। तो प्लीज वही बात है, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तभी पता होगा। उसके लिए पहले खुद पढ़ना पड़ेगा। डू सेल्फ स्टडी। आपको पता होना चाहिए एसडीएस क्या है, यूनिवर्सिटीज कॉलेज क्या है, किस कॉलेज में वर्क परमिट मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, अच्छा इंस्टीट्यूट आइल्स कौन सा कराता है, ये सारी चीजें पता है। किसी को 20-25 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। एक चीज का और ध्यान रखना, कनाडा एक बार रिजेक्ट हो गया, 2 बार रिजेक्ट हो गया, 10 बार रिजेक्ट हो गया, उस बच्चे का भी वीजा लग सकता है। हमने भी लगवाए हैं। तो ऐसे लोग जो प्रमोट कर रहे हैं इस तरह से कि जी मैं
25 लाख रुपए इस चीज़ के ले रहा हूँ कि तेरा 3 बार रिफ्यूज है या 2 बार रिफ्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल 25,000 प्रोसेस के साथ भी फाइल लगाओगे तो भी आपके वीज़ा आ सकता है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ ਇਹ ਚੈਨਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।